Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, read the passage given below. What is discipline? Is it an absolute freedom to do what a person wants? Is freedom regardless of consequences? Does it mean corrective action after a problem occurs or wrong is done? Is it imposition? Is it abuse? Does it take away freedom? So बच्चों ये जो पैराग्राफ है ये पूछ रहा है कि डिसिप्लिन क्या है। क्या वो एब्सोल्यूट फ्रीडम है जो एक आदमी को चाहिए, जो एक पर्सन को चाहिए? क्या ये जो फ्रीडम आता है बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के आता है? क्या ये करेक्टिव एक्शन जब हम कुछ सही या गलत करते हैं उसको बताता है? क्या ये अब्यूज है? और ये क्या हमारा जो आज़ादी है, फ्रीडम है, वो छीन लेता है? The answer is none of the above. Discipline does not mean that a person takes a belt and beats up kids. That is madness. Discipline is loving firmness. It is direction. It is prevention before a problem arises. It is harnessing and channeling energy for a great performance. Discipline is not something you do to yourself, but you do it for those you care about. So second paragraph में ये बता रहा है कि जो भी हमने पॉइंट्स फर्स्ट पैराग्राफ में बोले उसमें से कोई भी नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप बेल्ट से किसी बच्चे को मारो, वो पागलपन है, दैट इज मैडनेस। डिसिप्लिन एक लविंग फर्मनेस है, एक दृढ़ निश्चय है, वो आप एक डायरेक्शन है और एक प्रिवेंशन है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले उसको सॉल्व करें, उसके लिए एक प्रिवेंशन। वो एक एनर्जी है जो आपको चैनल करेगी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में। और डिसिप्लिन आपके अपने लिए नहीं है, उनके लिए है जिनकी आप केयर करते हैं। डिसिप्लिन इज एन एक्ट ऑफ लव। समटाइम्स यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। नॉट ऑल मेडिसिन आर स्वीट एंड नॉट ऑल सर्जरीज आर पेनलेस, बट वी हैव टू टेक दैम। We need to learn from nature. We all are familiar with big animal, the giraffe. A female giraffe gives birth to a baby giraffe standing. All of a sudden, the baby falls to the ground from the cushion of its mother womb and sits on the ground. The first thing that the mother giraffe does is to get behind the baby and give it a hard kick. The baby gets up and sits down again. The mother keeps kicking till the baby gets up on its feet and starts moving. Why? Because she knows that the only chance of survival for the baby in the jungle is to be on its feet. Otherwise, it will be eaten up by wild cats. तो बच्चे यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में ये बता रहा है, ये बता रहे हैं कि डिसिप्लिन एक एक्ट ऑफ लव है। आपको कभी कभी अनकाइंड होना पड़ता है काइंड होने के लिए। जैसे ये पैसेज के ऑथर ये बता रहे हैं कि जैसे जिराफ की माँ अपने बेबी जिराफ को पैदा करती हैं, सबसे पहला वो ये काम करती हैं, अपने बच्चे को किक करती हैं, अपने बच्चे को लात मारती हैं जिससे वो उठ खड़ा हो, क्योंकि जंगल में रहने के लिए उसे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, वरना वो वाइल्ड कैट्स का शिकार हो जाएगा, जैसे टाइगर, लायन एक्सेट्रा। नाउ फोर्थ पैराग्राफ, चिल्ड्रन ब्रॉट अप in loving yet disciplined environment end up respecting their parents more and become law-abiding citizens. The reverse is just as true. Good parents are not afraid of momentary dislike by children to enforce the subject. Allowing a child to eat a box of chocolate could lead to sickness. At the same time, this discipline of eating 1 or 2 pieces a day can be an enjoyable experience for a longer time. Our instinct makes us do whatever we want, regardless of the consequences. Freedom is not procured by the full enjoyment of what is desired, but by the control of desire. तो बच्चों फोर्थ पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो एक डिसिप्लिन व्यवहार में, एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं या उनको बड़ा किया जाता है, वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनते हैं, मतलब लॉ से चलते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको, मान लो पेरेंट, आप एक अच्छे पेरेंट हो तो आप एक अपने बच्चे को पूरे एक दिन में एक चॉकलेट का डिब्बा खाने दोगे, बट उसको अगर एक दो दिन एक चॉकलेट या 2 चॉकलेट पर डे दोगे तो ये बहुत अच्छा एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस बन सकता है। नाउ, on the basis of your understanding of the passage, answer the following question. If not the family, where else can one learn discipline from? Option A, the people around us. Option B, the school where students study and learn. Option C, nature. And option D, the giraffe. So बच्चों, अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की
ठीक है, द पीपल अराउंड अस, तो पैसेज में कहीं पे नहीं बात की गई कि आप डिसिप्लिन अपने पीपल जो आपके आसपास हो उनसे सीख सकते हो, सो वील रिजेक्ट, क्योंकि हमें पैसेज के हिसाब से चलना है, राइट। ऑप्शन बी, द स्कूल वेयर स्टूडेंट स्टडी एंड लर्न, तो इसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, सो वी विल रिजेक्ट दैट एज वेल। ऑप्शन सी, नेचर, एंड ऑप्शन डी, जिराफ। अब यहां पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जिराफ का, बट ये भी क्या गया है कि हम नेचर से सीख सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग सीख सकते हैं नेचर से, बिकॉज जिराफ इज अ पार्ट ऑफ नेचर, और पैसेज में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। So the correct option would be option C. I hope you understood it well. Best of luck.